Hello students, myself Rahul Mishra and today we will discuss the next topic of structure of atom chapter and it is Rutherford's atomic model. So as we have earlier discussed in the previous video lecture about Rutherford's alpha scattering experiment. So listen, Rutherford also proposed an atomic model which was based on Rutherford alpha scattering experiment. It means Rutherford ने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेसिस पर एक एटॉमिक मॉडल को प्रपोज किया एंड लिसन इट वाज प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट रदरफोर्ड इन 1911. इट मींस 1911 में रदरफोर्ड ने एक एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया and that atomic model is called as Rutherford's atomic model. So listen, according to Rutherford's atomic model, the first point is atom is extremely small. Atom is extremely small and electrically neutral particle. न्यूट्रल पार्टिकल. इट मीन्स रदरफोर्ड ने यह बताया कि जो एटम है वो बहुत छोटा है और इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है. इट मीन्स वो बहुत छोटा है और वैद्युत उदासीन कण है. सो लिसन, अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल, एटम इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल. Second point of Rutherford atomic model is the side. Listen, the central part of atom. The central part of atom is highly dense. It means जो एटम का सेंट्रल पार्ट है, दिस सेंट्रल पार्ट इट इज हाईली डेंस एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड वेयर होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड. इट मीन्स किसी एटम का जो सेंट्रल पार्ट है वो हाईली डेंस है, मीन्स घना हुआ है बहुत ज्यादा, और पॉजिटिवली चार्ज है, मीन्स वहां पर पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है. एंड लिसन, होल मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंट्रल पार्ट. इट मीन्स इस सेंट्रल पार्ट पर पूरे एटम का समस्त भार क्या है, निहित है. So listen, this central part was called as nucleus. It means इस सेंट्रल पार्ट को रदरफोर्ड ने कहा न्यूक्लियस. Where, listen, where whole mass of the atom is concentrated. Now listen, Rutherford told that, Rutherford ने बताया, listen, the electrons revolve around the nucleus. जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व करते हैं. एंड लिसन, द स्पेस प्रेजेंट अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस होता है, इट मीन्स we are talking about this space. This is nucleus, और न्यूक्लियस के बाहर जो स्पेस हमको दिख रहा है, this space is called as extra nuclear space. और इसी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं या चक्कर लगाते हैं या मोशन करते हैं या गति करते हैं.
So listen, Rutherford told that the space present around the nucleus is called as extranuclear space where electron revolve. Now, fourth point is the size of nucleus. It is extremely small in comparison to complete size of atom. It means जो nucleus का size होता है वो atom के size से बहुत छोटा होता है. So size of nucleus is extremely small than size of atom. So this was next point of Rutherford's atomic model. So all of you prepare notes from images and listen. Next thing is Rutherford atomic model is also called as, this point is very important, it is also called as solar or planetary model. It is also called as solar or planetary model. It means Rutherford के atomic model को solar या planetary model भी कहा जाता है, because as the, listen, because we can say, because as the planet revolve around the sun, जैसे कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है. So that's why it is also called as solar or planetary model. It means जैसे कि प्लैनेट्स सन के अराउंड चक्कर लगाते हैं, वैसे ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड चक्कर लगाता है. So this model is also called as solar or planetary model. Now listen, there are some limitations of this model, but listen, one remaining point is, according to Rutherford, neutron and proton are present inside the nucleus and electron present in extranuclear space. It means Rutherford के अनुसार जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनकी पोजीशन क्या है, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन कहाँ है, न्यूक्लियस के बाहर, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर स्पेस में. नाउ वी विल डिस्कस सम लिमिटेशंस ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल. अब हम रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल की कुछ कमियां डिस्कस करेंगे. सो व्हाट आर द लिमिटेशंस of Rutherford atomic model. So listen, there are some limitations. First limitation is he could not explain the existence of atom. It means ये Rutherford जो थे ये एटम के एग्जिस्ट होने को एक्सप्लेन नहीं कर सके. Why? Because Rutherford ने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के चारों ओर अगर ये मूव करेगा तो इसकी एनर्जी में, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में क्या होगा, एक डिक्रीज आएगा या डिके आएगा या क्षय होगा, या इसकी एनर्जी में कमी आएगी, और कमी आएगी तो इस इलेक्ट्रॉन की जो डिस्टेंस थी न्यूक्लियस से वो धीरे धीरे क्या होगी, वो घटती जाएगी, और एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, जिससे कि इस एटम का अस्तित्व या एटम की आइडेंटिटी ही क्या होगी, खत्म हो जाएगी. इसलिए रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया, बिकॉज ही कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम और एग्जिस्टेंस ऑफ एटम. क्योंकि रदरफोर्ड एटम की एग्जिस्टेंस या स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सके. क्योंकि हमें पता है इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो धीरे धीरे उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होती जाएगी, और इलेक्ट्रॉन की न्यूक्लियस से डिस्टेंस भी क्या होगी, कम होती जाएगी, और ये कुछ स्पाइरल लाइक मोशन करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में जाकर
गिर जाएगा और एटम की आइडेंटिटी क्या होगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी या खत्म हो जाएगी. सो दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. सेकेंड, रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एटम. रदरफोर्ड किसी एटम के एटॉमिक स्पेक्ट्रम को भी एक्सप्लेन नहीं कर सके. So Rutherford could not explain the atomic spectrum of atom. It means Rutherford एटॉमिक स्पेक्ट्रम में आने वाली सूक्ष्म रेखाओं या फाइन लाइंस को एक्सप्लेन नहीं कर सके. So listen, this was also the limitation of Rutherford's atomic model. तो होता क्या है, जब कोई इलेक्ट्रॉन ये लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में जंप करता है तो कुछ टाइम के बाद ये हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में दोबारा लौट के आता है. दिस इज लोअर एनर्जी लेवल एंड दीज आर higher energy levels. These are higher energy levels. It means अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में गया, फॉर एग्जाम्पल दिस इज n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1 लेवल, ये n इज इक्वल टू 1 लेवल है, ये n इज इक्वल टू 2 लेवल है, ये n इज इक्वल टू 3 लेवल, ये n इज इक्वल टू 4 लेवल. तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में गया तो फर्स्ट लेवल को ग्राउंड लेवल भी कहते हैं. तो फर्स्ट लेवल से ग्राउंड लेवल से सेकेंड लेवल में जाएगा या फर्स्ट लेवल से सेकेंड लेवल में जाएगा तो ये कुछ टाइम बाद ये वापस क्या करता है, लोअर एनर्जी स्टेट में आना चाहता है. और ये लोअर एनर्जी स्टेट में जब आता है तो करता क्या है, कुछ एनर्जी एमिट करता है. और जो एमिटेड एनर्जी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लाइट होती है. तो हमें क्या मिलता है, इस एमिशन के कारण या इस एमिटेड एनर्जी के कारण हमें एक लाइन दिखाई पड़ती है. इसी तरह जब इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से पहले 2 में जाता है, फिर फर्स्ट से सेकेंड लेवल में जाता है तो एक दूसरी लाइन मिलती है. फिर फर्स्ट से फोर्थ लेवल में जाता है, फिर फोर्थ से फिर फर्स्ट लेवल में लौटता है तो हमें एक तीसरी लाइन मिलती है. इट मीन्स वी कैन से वी फाउंड अ ग्रुप ऑफ लाइंस. इसका मतलब हमें एक ग्रुप ऑफ लाइंस मिलती है एंड दिस ग्रुप ऑफ लाइन इज कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. और इसी ग्रुप ऑफ लाइन को क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम. लेकिन ये लाइन जो है वो छोटी छोटी अदर लाइंस में भी टूट जाती है. तो इस बात को या फाइन लाइन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर सके. सो रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइन लाइन स्पेक्ट्रम. इट मीन्स यहां कुछ एटॉमिक स्पेक्ट्रम में लाइंस तो बनती हैं, दीज ग्रुप ऑफ लाइंस आर कॉल्ड एज स्पेक्ट्रम. बट ये जो ग्रुप ऑफ लाइन है ये और छोटी छोटी लाइंस में क्या होती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं या टूट जाती हैं. तो इस स्पेक्ट्रम को कहते हैं फाइन लाइन स्पेक्ट्रम. बट रदरफोर्ड इस फाइन लाइन स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर सके. सो लिसन, दिस मॉडल वाज फेल्ड. इसलिए यह मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया.